Hi guys, welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर स्लैट 2022. So symbiosis का एग्जाम है. How are you feeling? How are you feeling? How is everybody feeling? Good? Okay, I know a lot of you are not feeling good because I'm getting those messages. दी हमसे A-Let clear नहीं हुआ, CLAT clear नहीं हुआ, SLAT है, अब डर लग रहा है. So I want to tell you that A-Let and CLAT are comparatively difficult, but SLAT is on the easier side. तो symbiosis का जो exam है वो easier side पे रहता है, तो we have to make sure that we give 100% again, and this time we need to make sure कि हम जब paper attempt कर रहे हैं तो हम कोई भी गलती ना करें. तो सबसे पहली चीज आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे how to attempt SLAT. Yes, एक फॉर्मूला देने वाली हूँ मैं अपने लॉगरियंस को जो वो लगाएंगे और बहुत बढ़िया से उनका पेपर जो है वो क्लियर होगा. लास्ट ईयर अराउंड 100 to 150 स्टूडेंट्स वर लॉगरियंस हु क्लियर द एग्जाम. सो येस, वी आर गोइंग टू गिव 100%. वी नीड टू मेक श्योर दैट वी गेट अ कॉल फॉर वैट एंड पीआई पर्सनल इंटरव्यू, और वैट की कॉल हम सबके पास आनी चाहिए. कल हमने अच्छे से पेपर देखा है, डरने वाली कोई बात ही नहीं है. आई नो A-Let and CLAT were lengthy for some of you, but this one is not that lengthy. It is on the easier side. You can do it, I am telling you, and I'm going to tell you how to attempt the paper. I'm going to give you section wise tips and tricks. Section wise tips and tricks we are going to discuss, and there's going to be a lot of motivation also. So let's get started with today's session. Tomorrow is Sunday, 3rd July. You have your exam 9 a.m. to 10 a.m. You have your exam, and they are saying 7:30 a.m. is the reporting time. ठीक है ना, 7:30 a.m. reporting time है, और इन्होंने बोला 8:30 के बाद किसी को भी अलाउड नहीं किया जाएगा. 8:30 a.m. के बाद no one would be allowed. So we are reaching the test center. Logarians are going to be there by 7 a.m. ठीक है ना, हम जल्दी पहुंच जाएंगे 7 a.m. Okay. Logical reasoning 12 questions are going to be there. Legal reasoning 12, analytical reasoning 12, reading comprehension 12, general knowledge 12. Total is 60 questions are going to be there, and there is no negative marking. नो नेगेटिव मार्किंग. ओके, तो सारा का सारा पेपर अटेम्प्ट करके आएंगे सभी. नो नेगेटिव मार्किंग मीन्स वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट द इंटायर पेपर. नाउ लॉट ऑफ यू हैव दिस क्वेश्चन कि दी ये भी क्या क्लैट की तरह होगा, हर जगह पैसेज नहीं. Only in English you are going to have passages. All other sections are going to be normal MCQ type of क्वेश्चन. बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन है, वैट और पीआई कब होगा, वैट प्लस पीआई कब होगा. व्हाट इज वैट? नाउ वैट इज योर essay writing. वैट इज आवर essay writing part. And what is personal in PI? PI is your personal interview. So very clearly on their website they have mentioned that shortlisting and selection process for SLAT. What are they saying? They are saying shortlisting for personal interaction and writing ability test or studio test and personal interaction. Candidates will be shortlisted for PI VAT based on their respective entrance test marks. Please check the respective institute website for information and dates for PI VAT. ठीक है ना. तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा. ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के बाद अगर हमारी सिलेक्शन होती है तब हमें वैट और पीआई देने जाना होगा, और इसकी हम प्रेपरेशन, अगर हमारा एग्जाम अच्छा होता है, I have done already video, I've done videos how to prepare for VAT and PI, but if you want I can do fresh videos also. You need to comment down below, and we're going to start preparing for VAT and PI from tomorrow itself. From Sunday only we're going to start preparing for VAT and PI also. Okay, how to attempt? Now there are two ways that you can do that. Attempting the exam as one unit only and running through the paper multiple times. So this is something that I'm going to suggest because there is no negative marking. If there is no negative marking, this is something that I'm going to say that paper को एक unit की तरह treat करो, और पहले टाइम पे वो वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो जो आपके 100% श्योर वाले क्वेश्चंस है कि हाँ ये मुझे आता है. ठीक है, अब दूसरे राउंड के अंदर क्या करो, वो वाले क्वेश्चंस पे जाओ जिन पे आपको लग रहा है कि हाँ मुझे थोड़ा दिमाग और अप्लाई कर लेती हूँ, क्या पता है इसमें से जो ये मेरा गलत होने वाला था, जो रॉन्ग होता है, ये करेक्ट हो सकता है अगर मैं इसके ऊपर थोड़ा दिमाग लगा लूँ. कई बार होता है जब हम फर्स्ट टाइम को क्वेश्चन देखते हैं, वी आर नॉट एबल टू रिमेंबर थिंग्स, बट व्हेन वी गो टू द क्वेश्चन सेकंड टाइम वी आर एबल टू रिमेंबर द थिंग्स. तो जो हमारा +1 नहीं होना था वो हम +1 कर लेते हैं. तो पहले 100% श्योर जिसका हमें पता है कि यस यही आंसर है, उसके बाद हम अपना सेकंड राउंड में वो वाले क्वेश्चंस लेंगे जिनके हमें आंसर नहीं आते, या फिर जिनके हमें
लगता है कि जिसमें हमें गेस वर्क करना है वो भी सेकेंड राउंड में कर सकते हैं, या फिर जिन पे हमें लगता है कि हमें एक्स्ट्रा टाइम लगाकर सोचना पड़ेगा उनके ऊपर भी, और हमें अटेम्प्ट सब कुछ करके आना है। तो ये अगर आप डिफरेंट राउंड्स में क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन पेपर को, वो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा बात रहेगा, बिकॉज देर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, दूसरे वे में बच्चे जो करते हैं वो करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट करते हैं कि कौन से सेक्शन को कितना टाइम देना है। अब यहाँ पर क्योंकि सभी सेक्शंस जो हैं वो आपके सेम मार्क्स के हैं, 12 मार्क्स ईच का ही आपका सेक्शन है, तो इसके अंदर से मैं आपको कहूंगी कि जीके के अंदर आप सबसे कम टाइम लें। 12 क्वेश्चन ऑफ जीके आपको कम से कम 4 to 5 मिनट्स से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 to 5 मिनट्स में आप अपनी जीके खत्म कर सकते हैं। जीके बहुत ही जल्दी आपकी हो जाएगी। ठीक है, एंड देन यू कैन मूव ऑन टू द अदर सेक्शन। इंग्लिश में थोड़ा टाइम आपको लग सकता है, ठीक है, क्योंकि आरसीज होंगे। बाकी जो आपके सेक्शंस हैं जैसे लॉजिकल रीजनिंग है, पजल टेस्ट में टाइम लग सकता है आपको। ठीक है, तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कर करें। आई वुड से कि रन थ्रू द क्वेश्चंस, बिकॉज इससे क्या होगा कि जो आपके 100% श्योर वाले क्वेश्चंस हैं वो मिस नहीं होंगे। क्या होता है कि हम एक ही जो जो सेक्शन में भी हमारा अच्छा नहीं भी है, या फिर हमें लगता है कि ये हमारा स्ट्रॉन्ग सेक्शन है और मे बी वो सेक्शन हमारे टाइप का नहीं आया होता, बट हम उसके साथ ही लगे रहते हैं बिकॉज हमने एक प्लानिंग करी होती है। तो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट यू शुड वर्क अराउंड एंड नॉट दिस। दिस इज समथिंग आई वुड सुजेस्ट। ओके, टाइम मैनेजमेंट इसलिए मैं इसमें नहीं दूंगी, बट अगर आप चाहते हो कि आप टाइम मैनेजमेंट के थ्रू पेपर करना चाहते हो, क्योंकि 60 मिनट्स है यहाँ पर, तो 60 मिनट्स में टाइम मैनेजमेंट के थ्रू अगर पेपर करना चाहते हो तो 4 to 5 मिनट्स आप जीके को दे सकते हो। ठीक है, और उसमें से 10 to 15 मिनट्स अगर आप इंग्लिश को दे रहे हो, तो बाकी सारा टाइम आप लॉजिकल के लिए रख सकते हो, एंड लीगल को भी आप 10 to 15 मिनट्स में खत्म कर सकते हो। तो 10 to 15 मिनट, 35 मिनट्स आप अपना इन सब्जेक्ट्स को दो, और बाकी सारा आप लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग को दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो लीगल के क्वेश्चंस आते हैं वो इतने ज्यादा क्वेश्चंस बड़े नहीं होते, तो बहुत कम टाइम में यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस इन विथ सीक्वेंस। देखिए, अगर आप सीक्वेंस प्लान कर रहे हैं सेक्शंस की, तो यू कैन, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप कोई भी सीक्वेंस में जा सकते हैं। अगेन यहाँ पे 12 क्वेश्चंस है हर सेक्शन में, तो वेटेज सेम है, तो वेटेज के अकॉर्डिंग तो हर सेक्शन ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो मैं कहूँगी जो सेक्शन में आप स्ट्रांग है, जो या फिर आपको उस टाइम पे जो ईजी लग रहा है वो आप करिए। देखिए वहां पर पेपर के अंदर यू शुड नॉट, आई थिंक आप अगर एक बहुत ही ज्यादा फिक्स प्लान, देखो कुछ प्लानिंग ना करके जाना भी ठीक नहीं है। इफ यू आर नॉट प्लानिंग एनीथिंग दैट इज नॉट राइट, बट इफ यू आर प्लानिंग टू मच, ठीक है ना, और वहां पर जाकर आप फ्लेक्सिबल नहीं हो रहे हो, अपना प्लान नहीं चेंज करो, तो वो भी प्रॉब्लमैटिक रहता है। तो इसलिए आई वुड से कि ज्यादा मतलब उसमें भी मत पढ़ना, जो भी आपको बस +1 लेना है, बस मतलब जैसे ही एक क्वेश्चन में +1 लिया उसके बाद ढूंढना है कि नेक्स्ट +1 मैं कहाँ से उठाऊं। ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट आई वुड से। एंड अगर आप टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से चल रहे हैं कि नहीं मुझे सेक्शन वाइज ही करना है पेपर, मतलब हर एक पर्टिकुलर सेक्शन को एक पर्टिकुलर टाइम ही देना है, तो आई वुड से कि आप जो भी आपको हैवी सेक्शन लगता है वो सबसे पहले हैवी सेक्शन करिए। जैसे आप इंग्लिश सबसे पहले कर सकते हैं, या फिर लीगल रीजनिंग पहले कर सकते हैं, या फिर लॉजिकल रीजनिंग पहले कर सकते हैं। उसके बाद आप जीके उठाइए। ठीक है, उसके बाद आप एक लाइटर सेक्शन उठा सकते हैं, जैसे अगर इंग्लिश पहले किया तो लीगल रीजनिंग को थर्ड पे प्लेस कर लो, ऐसा कुछ कर सकते हो। या फिर जिसमें आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, मान लो मैं लॉजिकल में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ, तो मैं पहले उसको जाकर सॉल्व करना चाहूंगी ताकि वो मुझे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट करे। या फिर मैं जीके में बहुत स्ट्रांग हूँ तो मैं वो पहले जाऊंगी, जैसे भी आपको ठीक लगे। नो नेगेटिव मार्किंग के अंदर मैं आपको अगेन बता रही हूँ कि दिस इज अ पावर, ये क्या है, हमारी पावर है। ठीक है ना, और इस पावर को कैसे यूज कर सकते हैं, अगर हम 2 टाइम्स मतलब 2 रन्स में एटलीस्ट पेपर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड रन में वापस आई उन क्वेश्चंस पे जो आपने यू हैव लेफ्ट द क्वेश्चंस, यू शुड कम बैक, ट्राई टू एलिमिनेट एंड अराइव एट द करेक्ट ऑप्शन। तो एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, ABCD है। ठीक है, अब मैं ट्राई करूंगी कि मैं इसको क्रॉस करके कहूँ कि हाँ ये है। अगर आप एलिमिनेट करके, स्पेशली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर, जो आपके अगर अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस, आर्गुमेंट्स बेस्ड क्वेश्चंस है, अगर आप एलिमिनेट करके उनके ऊपर आंसर अराइव करते हो तो बहुत चांसेस रहते हैं कि आंसर सही है। इवन फॉर लीगल रीजनिंग कई बार होता है कि हम सारे के सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ते हैं, फटाफट में पहले ऑप्शन या दूसरे ऑप्शन को ही करेक्ट मान लेते हैं, बट ऐसा एग्जामिनर ने पर्पसफुली करा होता है आपको फंसाने के लिए। तो सारी ऑप्शंस पढ़ें और एलिमिनेट कर आंसर चूज करने की कोशिश करें, राइट।
वन थिंग दैट आई वांट टू टेल यू कि इंस्ट्रक्शंस वाली वीडियो मैंने ऑलरेडी कर दी है, तो वो ज़रूर पढ़कर जाना है। इंस्ट्रक्शंस में आपको एडमिट कार्ड जो है वो कलर्ड लेकर जाना है, ओरिजिनल आईडी कैरी करनी है, तो वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस ज़रूर पढ़कर जाएं, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कैरी। अब यहाँ पे क्या है, जो भी क्वेश्चंस आप आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू करोगे तो उनके आपको मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर आपने कुछ आंसर करा, देखिए अगर आप राउंड्स में कर रहे हैं तो ये अब आपका डिसीजन है कि आप फर्स्ट राउंड के अंदर ही जो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं उनके ऊपर आप मार्क करेंगे या नहीं करेंगे। अगर नहीं भी कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपके पास अच्छा खासा टाइम है, वापस जाके आप उनको मार्क करें, ठीक है ना। तो अगर आप ओनली ये कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर आप यहाँ पे सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू कर रहे हैं तो इनके मार्क्स आपके नहीं ऐड होंगे। बट अगर आप आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू कर रहे हैं, मतलब ऑप्शन चूज कर रहे हैं, तो इसको आपको मार्क्स ऐड होंगे, ठीक है ना, मार्क्स प्लस होंगे इसके अगर आप करेक्ट करते हो। तो ये आपको देखना है, ये डिसीजन कर कर जाना कि फर्स्ट राउंड के अंदर मैं सभी को मार्क करूंगी और फिर मैं रिव्यू वाले क्वेश्चन पे वापस आऊंगी, या फिर जो मेरे को दूसरी बार रन में आना है तो मैं उनका नहीं मार्क करूंगी। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू डिसाइड कि आपको क्या कंफर्टेबल लगता है, ठीक। ट्रिक्स एंड टिप्स, ठीक है ना। अब इसके अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ट्राई टू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट विदाउट ऑप्शंस, ठीक है ना। क्वेश्चंस पढ़ लो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से पहले कि चाहते क्या है, क्या पूछ रहे हैं, इन्फ्लुएंस का क्वेश्चन है, टोन का क्वेश्चन है, थीम का क्वेश्चन है, या फिर कुछ भी और क्या क्वेश्चन है, कोई वोकैबुलरी का क्वेश्चन है, सो दैट आपको एक पर्पस मिल जाए कि किस पर्पस से आपको वो पैसेज पढ़ना है। गेट एन आइडिया व्हाट यू हैव टू रीड द पैसेज फॉर, ठीक है। तो 10 to 20 सेकंड में फटाफट से क्वेश्चंस पढ़ने हैं विदाउट ऑप्शंस और फिर पैसेज पे जाना है, ठीक है ना। अब वहां पर अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है, आफ्टर रीडिंग द पैसेज कम टू द क्वेश्चंस एंड रेफर बैक टू द पैसेज इफ रिक्वायर्ड, ठीक है ना। अगर लगता है कि हाँ पैसेज पे वापस जाना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कंप्लीट पैसेज के एनालिसिस के बेसिस पे ही हमें आंसर करने होते हैं और हमें वापस जाने की जरूरत नहीं है। बट कुछ क्वेश्चंस में हमें कुछ पर्टिकुलर लाइंस पे वापस जाकर चेकआउट करना पड़ता है। राइट डाउन एनीथिंग स्पेसिफिक आस्क्ड इन द क्वेश्चन, तो आपको जो रफ शीट मिलेगी उसमें लिख सकते हो, जैसे कुछ भी आर्ग्यूमेंट पूछा तो आर्ग लिख लिया, अजम्पशन पूछा तो अजम्पशन लिख लिया, अगर नीड इफ रिक्वायर्ड, ठीक है ना। तो ये आप कर सकते हो। उसके बाद फॉर वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन मेरा टिप आपको ये रहेगा कि डू रीड 2 to 3 लाइंस टुगेदर जहां पे वोकैबुलरी का क्वेश्चन है, बिकॉज फिर आप इजीली गेस कर सकते हो कि आंसर क्या है। लीगल रीजनिंग में, क्योंकि ये सीबीटी मोड में आपका एग्जाम हो रहा है, तो यहाँ पे मैं कहूंगी कि आप लीगल रीजनिंग के अंदर क्या होता है, कभी कभी या बहुत बार होता है कि हमें इसेंशियल्स, जैसे मान लीजिए थेफ्ट है, तो थेफ्ट के इसेंशियल्स जो हैं वो आपको अगर नोट करने की जरूरत है कि थेफ्ट में क्या होगा, प्लस प्लस प्लस, ये तो थेफ्ट होगा, एंड फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत है, तो आप रफ शीट पे ये भी कर सकते हैं। मैथ्स के अंदर नीट कैलकुलेशन करें, लॉजिकल के अंदर भी, बिकॉज कभी कभी होता है आपसे क्वेश्चन नहीं एक बार यू आर नॉट एबल टू मेक इट द क्वेश्चन, यू आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट, but then you are leaving it and you're moving on to the next question, but then you can come back and carry forward. अब you can pick up the question from where you left, अगर कैलकुलेशंस नीट है। अगर कैलकुलेशन नीट नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, दोबारा दोबारा से कैलकुलेशन करोगे, टाइम वेस्ट होगा। करंट अफेयर्स के अंदर एलिमिनेट करके आंसर देने की जरूरत नहीं रहती है, बिकॉज वहां पे थोड़े से कंफ्यूजिंग ऑप्शंस होते हैं, तो जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा पहले तो सबसे अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना, डोंट जंप ऑन द ऑप्शंस, और अपने माइंड में आंसर जरूर करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एलेट के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि फर्स्ट ब्लैक वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ यूएस कौन बन रही है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नहीं था, वहां पे उन्होंने कुछ और क्वेश्चन पूछा था, बट बच्चे आंसर ये देकर आए थे। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है कि वो पूछ क्या रहे हैं, ठीक है ना। कभी कभी जो चीजें हमने बहुत ज्यादा पढ़ी होती हैं, हम सीधा फटाक से आंसर दे देते हैं कि हाँ यही चल रहा है, यही आंसर होगा, बट उनको भी पता है एग्जामिनर ने कुछ और पूछा होता है। तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली। बोनस टिप्स क्या है आपके, बोनस टिप्स है रीड द क्वेश्चन एंड ऑप्शंस वेरी केयरफुली। क्वेश्चन में करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, अजम्पशन पूछा है, आर्ग्यूमेंट पूछा है, ट्रू पूछा है, फॉल्स पूछा है, ये अच्छे से पढ़ना है, अज्यूम नहीं करना, ठीक है। उसके बाद ऑप्शंस बहुत अच्छे से पढ़े, सारी ऑप्शंस पढ़े, नो व्हेन यू हैव टू जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, बच्चों को लगता है ये मेरा जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, इसके तो मैं सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आऊंगी। ऐसा नहीं करना। अगर एक क्वेश्चन मोर देन यूजुअल टाइम ले रहा है तो आप उसको छोड़ दीजिए तब के लिए, एंड कम बैक टू द क्वेश्चन व्हेन यू हैव टाइम, ठीक है। समथिंग यू नीड टू टेल योरसेल्फ बिफोर द एग्जाम, क्या बताना है अपने आप को कि वहां पे कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका आंसर मुझे नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, वो मैं गेस वर्क कर सकती हूँ यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद डोंट पैनिक एट ऑल, डोंट स्टिक टू क्वेश्चन, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्पसफुली डाले होते हैं वो कि आपका टाइम वेस्ट हो सके, ठीक है।
उसके बाद इफ द पेपर इज डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट फॉर एवरीवन, इफ इट इज इजी, वैसे स्लैट इजी ही आता है, डिफिकल्ट नहीं आता है, ठीक है। आपको क्या है, अगर कुछ अलग सा आ जाता है, स्लैट हमेशा से सेम ही आ रहा है, कभी भी कुछ ऐसा ऊपर नीचे ज्यादा नहीं होता है स्लैट में, बट बाय चांस अगर हो भी जाता है तो सोल्यूशन ओरिएंटेड रहना, बस ये देखना कि कौन सा सेक्शन है, कौन सा क्वेश्चन है जो मैं अटेम्प्ट कर सकती हूँ, वो अटेम्प्ट करना, ठीक है। वेन एवर पैनिक, एंग्जाइटी, वरी, शॉक, इरिटेशन, इनमें से कुछ भी होता है तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस अपने आप को दो ही चीजें बोलने कि यार मुझे 100% देना है, ठीक है ना। व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू गिव माई 100%। और अपने आप से जब भी प्रॉब्लम है पूछो कि मैं सबसे बेस्ट चीज अभी क्या कर सकती हूँ, मतलब पैनिक कर सकती हूँ या फिर कुछ काम कर कर, कुछ पढ़कर कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकती हूँ, राइट गाइस। स्लैट अगर क्लियर कर लेते हो, स्लैट इज अ वेरी, सिम्बायोसिस लॉ स्कूल्स आर रियली गुड, पुणे एंड नोएडा आर वेरी वेरी गुड, एंड हैदराबाद और नागपुर भी मिलते हैं, तो दे आर रियली गुड, उनमें आप एडमिशन ले सकते हो, मच बेटर देन योर लोकल लॉ स्कूल्स। पुणे और नोएडा तो बहुत बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी सभी चारों के लॉ स्कूल्स में सिम्बायोसिस के। सो प्लीज हम मिलकर वैट एंड ऐसे राइटिंग की और हम अपनी पर्सनल इंटरव्यू की प्रिपरेशन करेंगे, बट प्लीज 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 ये कल का जो पेपर है वो अच्छे से देकर आओ, एग्जाम क्लियर कर कर आओ। इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है, बट ये वाला पेपर प्लीज क्लियर कर कर आओ, ठीक है। लुकिंग एट अदर्स एंड थिंकिंग दे नो एवरीथिंग, ये मैं तुम्हें पहले भी समझा चुकी हूँ कि ये नहीं करना है, कि दूसरे को देख रहे हो, क्यों देख रहे हो, 60 मिनट 60 क्वेश्चंस, टाइम ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करना, इधर उधर नहीं देखना है, ओके। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एग्जाम ऑन द इजियर साइड होता है, बट उसको अच्छे से सोच कर समझ कर आंसर्स कर कर आना, गलती मत करना अटेम्प्ट करते हुए, नंबर 1। नंबर 2, अपना बेस्ट देकर आना, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लैट एलेट को भूल जाओ, नहीं क्लियर हुए कोई बात नहीं, स्लैट अच्छे से देना है, पूरा मोटिवेटेड होकर जाना है, ठीक है। और वैट और पीआई की टेंशन नहीं लेनी, आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि आपके प्रैक्टिस सेशंस हो दोनों चीज़ों के, राइट। So that's it. Loggery signing off. I'll see you super soon after the exam. Bye bye and take care. I love you all so much. All the very best. मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, हमेशा तुम्हारे साथ रहता है. Okay, bye.